Hello guys, so as we discussed in the previous video where I discussed 3 questions as an example like कैसे आपको अप्रोच करना है या दिमाग में क्या क्या फैक्टर्स चलते रहने चाहिए. Now this video is primarily as a kind of instruction video for all of you जहां आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आप करेंगे क्या नहीं करेंगे. सबसे पहले तो whenever you are going to attempt the question paper, be fresh, be cool. मतलब जैसे आप घर पे बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, योर एटीट्यूड शुड बी एग्जैक्टली सेम. जैसे एकदम घर पे बिल्कुल फ्रेश और काम एटीट्यूड के साथ, राइट? एंड देन डोंट बी स्ट्रेस्ड एंड डोंट एवर फील एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर कि आप कुछ एग्जाम देने जा रहे हैं. जस्ट प्ले विद द सब्जेक्ट, you know, whether it is physics or it is chemistry or it is maths, whatever be the portion, you are supposed to enjoy the questions the most in the given time frame, that's for sure. Now I'm sharing some of the do's and don'ts, what like you are supposed to follow during the question paper. First of all, it is though really important for all of us, and sometimes we consider that okay, we can do it without that, but no, you should not. First thing, read all the instructions carefully, because in all those instructions it is being mentioned there किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं, कितना वेटेज है. बिकॉज सो फार वी नो के 25 क्वेश्चंस आने हैं, 5 न्यूमेरिकल बेस्ड आने हैं, बट हमें ये नहीं पता है कि कौन से क्वेश्चन के कितने मार्क्स होने वाले हैं. माइट बी पहले 10 क्वेश्चंस की मार्किंग कुछ अलग हो, अगले 10 की कुछ अलग हो, बाद के 5 वालों की कुछ अलग हो. देयरफॉर इट इज वेरी मच एसेंशियल. नेगेटिव मार्क्स किन क्वेश्चंस में है, किन क्वेश्चंस में नहीं है. सो इट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ यू कि आप सारे इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ें. सेकेंड थिंग, वट एवर बी योर बेसिक डेटा यू आर सपोज टू फिल अप इन द OMR शीट, दैट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन. रीजन बीइंग कि OMR में इफ like though now this is not the OMR sheet, you are supposed to fill it on the screen, but even in the screen you are supposed to be very much careful. कहीं भी एक छोटा मोटा मिस्टेक हुआ तो your answer key will not be checked. If it remains unchecked, तो आपकी जितनी भी मेहनत है that all will be wasted. Third thing what you are supposed to keep in the mind कि respective question, respective answer. If you will do that, then the probability of committing mistake will minimize. Now, first of all, before you are going to the exam, revise your short notes. Give a quick revision to the formulas or revise the formulas in the mind. जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ फॉर्मूलाज हैं, एक्टिव मास लेट्स से सॉलिड का, लिक्विड का, प्योर लिक्विड का 1 होता है, या एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ रेडियस रिलेटेड फॉर्मूला हैं, गैसियस स्टेट के कुछ फॉर्मूलाज हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन है, E cell is equal to E naught reduction cathode, E naught reduction anode, whatever, जो भी formulas हैं, you are supposed to revise all those formulas even while going for the exam. Just keep them in the mind, circulate करते रहो, and don't be in the stress. Just kind of जैसे कोई अच्छी मूवी देख के उसको रिवाइज कर रहे होते हैं दिमाग में. उसके बाद start the question paper with the subject in which you are most comfortable. That is very very important. If you are very much comfortable in chemistry, start it with the chemistry. If you are very much comfortable in the physics, start with the physics. If you are comfortable with the maths, start with the maths. See, it is a very subjective part कि आप कौन से subject से शुरू करने वाले हैं. तो I cannot give a simple formula कि no, you should start with this subject first. It depends on individual. According to your individuality, select the subject you are supposed to start it. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले गो में आपको तीनों सब्जेक्ट्स के वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपसे पढ़ते ही अटेम्प्ट हो जाने वाले हैं. दैट मीन डोंट टेक मच ऑफ द टाइम फॉर एवरी क्वेश्चन और फॉर एनी क्वेश्चन. इनिशियली गो थ्रू द होल क्वेश्चन पेपर इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, नॉट जस्ट 1 सब्जेक्ट. तीनों सब्जेक्ट आपको एटलीस्ट पहले 1 घंटे 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में मान के चलो कि आपको तीनों सब्जेक्ट का पूरा पेपर एक बार कर लेना है. सो दैट उसमें आपको 2 चीजों का फायदा होगा. एक तो जो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं वो आपके छूटेंगे नहीं, वो आप पहली बार में अटेम्प्ट कर देंगे. दूसरा, आप सारे क्वेश्चंस एक बार पढ़ चुके होंगे, तो जब आप दोबारा उन क्वेश्चंस को पढ़ने जाएंगे जहां आपको सॉल्विंग पार्ट पे ज्यादा काम करना है, यू विल ऑलरेडी बी अवेयर ऑफ
कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये था, आई रेड दिस पार्ट. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट डोंट टेक अ चैलेंज फॉर एनी क्वेश्चन. अगर दो क्वेश्चंस की वेटेज इक्वल है तो मैं टफ क्वेश्चन कर रहा हूं कि मैं इजी क्वेश्चन कर रहा हूं, इट डजंट डिसाइड्स व्हाट रैंक आई एम गोइंग टू स्टोर सिक्योर. व्हाट डिसाइड्स माय फाइनल रैंक इज दैट इज माय मार्क्स. तो अगर दोनों क्वेश्चंस के मार्क्स इक्वल हैं तो वी आर नॉट सपोज टू एक्सेप्ट अ चैलेंज फ्रॉम द क्वेश्चन. वो चैलेंज एक्सेप्ट करना है तो घर पे आके कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन सॉल्व इट एट होम. Moreover, you are supposed to be numerical based questions में be careful with the units. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब अगर गैस कांस्टेंट आर की बात है तो कई बार हम 2 में रख के आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन पता चला कि हमारे फाइनल ऑप्शन में किलो जूल पर मोल में आंसर दिया हुआ है. तो वी शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट सच थिंग्स. तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में यूनिट्स का ध्यान रखना है. और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ आंसर्स बहुत ऑब्वियस होते हैं. You can avoid calculations where it will save your time. They are the do's. You are supposed to do these things. Now there are don'ts, and don'ts are actually very few but really important. First of all, do not count the number of questions you have done so far. Even in the whole question paper, you are not supposed to count the question. Because अगर आपके questions कम हुए तो आप stressed हो जाएंगे, अगर आपके क्वेश्चन ज्यादा हुए तो आप ज्यादा खुश हो जाएंगे. और दोनों ही स्टेट आर द स्टेट ऑफ अनबैलेंस्ड कंडीशन. वी आर सपोज टू बी बैलेंस्ड थ्रू आउट द क्वेश्चन पेपर. तो आप क्वेश्चंस को काउंट नहीं करेंगे, जस्ट प्ले विद द क्वेश्चन, हैव फन विद इट. राइट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग, डू नॉट कैलकुलेट योर मार्क्स एट ऑल. डोंट कैलकुलेट इट. यस, घर आने के बाद आपको पूरा क्वेश्चन पेपर देखना है, सॉल्व करना है. मैं भी अच्छे क्वेश्चन जो केमिस्ट्री पार्ट से होंगे, एवरी डे आई विल अपलोड सर्टेन क्वेश्चंस इन द वीडियो सॉल्यूशंस. बट आपको क्या करना है, आपको उस टाइम पे काउंट नहीं करना है. डोंट काउंट योर मार्क्स, डोंट काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड. एंड रियली इंपॉर्टेंट थिंग दैट डू नॉट कंसीडर एनी क्वेश्चन कि नहीं ये सवाल तो मुझे सॉल्व ही कर देना है. नो. If suppose you have given good enough 1.5 or 2 minutes to a particular question and still you are not able to reach the final, leave it there, keep it in the rough and move to the next question. Because अभी आपके दूसरे क्वेश्चन का टाइम खराब हो रहा है. तो in that case you can be good at the time management, you can be good in the selection of questions, those questions you are supposed to attempt, and I think that is the better strategy. Along with that, I can give you all my blessings and all my good wishes. All the very best beta. Be concentrated, be focused और relaxed state में question paper करना. All the very best. Thank you very much for watching the video.